सर आप म्यूट हो। Yes. So, what are the learning outcomes? What are the learning outcomes of artificial intelligence? The purpose is to relate, apply, reflect on human-machine interactions, identify, interact with the three domains: data, computer vision, and natural language processing. Undergo assessment for analyzing the progress towards acquired AI readiness skills. Okay, so first we focus on the first 4 points, and then later we discuss remaining part. Now, go through all the on this topic. First, we have to understand the process. We have to learn the steps. Then we acquire some knowledge, and then we have to think. That is come under the category of process, and then again insight into our topic. Now, few of the persons who already made some remark on related to AI. Okay, Stephen Hawking, Larry Page, and Elon Musk, Nick Bilton, and they, N.R. Narayan Murthy, and they put up lots of things related to AI. Now the question, the question is that what is Excite module? This one, that what do you mean by artificial intelligence? Read 2-3 lines, and then we will discuss what do you understand this by artificial intelligence. Alo, if you read the first paragraph. Okay, now can anyone share after reading this paragraph? What do you understand by these 2-3 paragraphs? Can anyone explain about this one? Try it. सार्थक, आप ट्राई करोगे? सार्थक के बाद अक्षत, can you try? What do you understand by this 2-3 paragraphs? चलिए ठीक है, मैं आपको आगे का एक्सप्लेन करता हूँ. नाउ हियर
See, what we are going to learn in this artificial intelligence is that uh, ऐसे how many works are there that the machines can work easily, and how many works are there that the human beings can work easily. ठीक है, कोई आप ऐसा एग्जांपल बताएंगे जो मशीन्स बहुत इजीली कर लेते हैं और ह्यूमन बींग्स बहुत इजीली कर लेते हैं. See, few of the examples are that you are having a computer or mobile in front of you. ठीक है, so when you click on your mobile or on your computer, that application or that folder will open on your devices. So this is a very simple task of any devices. ठीक है, इन द सेम वे अगर आप किसी ह्यूमन बींग्स को कोई इंस्ट्रक्शंस देते हैं तो वो ह्यूमन बींग वो इंस्ट्रक्शंस फॉलो करता है. बट इन दोनों में डिफरेंस ये रहता है कि ह्यूमन बींग हैज टू पुट अप हिज ब्रेन. ठीक है, अगर आप बोलते हैं कि ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर टू अ ह्यूमन बींग, then human being has to decide that where is the kitchen and where is the pot, where is the water, and water, which utensils I have to put water, and then the human being bring the water in the particular utensil. ठीक है, okay, but this kind of intelligence is in machine or not? क्या आप में से कितने स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि अभी इस तरह की मशीन का इन्वेंशन हो चुका है? वो चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दें. Those who think that machines can also bring a glass of water from the kitchen, वो चैट बॉक्स में वाई टाइप कर सकते हैं. Yes, so correct. The machines are also doing this work, okay, and they are come under the category of smart homes. इस पर भी काफी वर्क चल रहा है. मशीन्स को वो इंस्ट्रक्शंस उसके करना, go at a particular place and they will what to you. ऑलरेडी हम अप्रैल मंथ में डिस्कस कर लिया था कि स्मार्ट होम में इस तरह की मशीन्स का यूज होता है. ठीक है, अब नाउ तो फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम लोग और क्या क्या सीखने वाले. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम लोग वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट कि जो जिस तरह से ह्यूमन का पास इंटेलिजेंस है, क्यों ना वो इंटेलिजेंस मशीन के पास भी आए. ठीक है, फिर से आप सेंटेंस समझना कि ह्यूमंस के पास जो इंटेलिजेंस है, एक कॉमन इंटेलिजेंस जो होता है, क्या वो कॉमन इंटेलिजेंस मशीन के पास भी आ सकता है? इस पे वर्क चल रहा है एंड दैट इज कम अंडर द कैटेगरी ऑफ एआई. अभी जो मैंने ये सेंटेंस बोला है, आप में से कोई स्टूडेंट उसको रिपीट करके बताएगा? अभी जो मैंने दो सेंटेंसेस बोले हैं, कैन यू रिपीट दिस सेंटेंसेस, तो मुझे समझ में आए कि आपको समझ में आ रही है मेरी बात. अक्षिता, कैन यू रिपीट माय दिस लास्ट टू सेंटेंसेस? सर, जो ह्यूमन जो कॉमन टास्क कर सकते हैं वो मशीन भी कर सकते हैं. यस, करेक्ट. तो ह्यूमन के पास जो कॉमन इंटेलिजेंस है, क्या वो कॉमन इंटेलिजेंस मशीन के पास आ सकता है? तो इस पे अभी वर्क चल रहा है. ठीक है, और इसके लिए कुछ अभी स्टार्टअप में, जैसे कि सबसे पहला एग्जांपल है कि द मशीन्स आर गोइंग टू रिकॉग्नाइज द फेस. वो हमारे फेस रिकॉग्नाइज करने गए हैं, वो हमारी वॉइस रिकॉग्नाइज करते हैं. मशीन्स आर गोइंग टू रिकॉग्नाइज द इमेजेस, है ना. इमेजेस का एक एग्जांपल है कि जैसे कि भीम ऐप है, फोन पे है, पेटीएम है, तो ये क्या करते हैं, एक इमेज रिकॉग्नाइज करते हैं. आप जब जाते हैं इनके थ्रू आप कुछ स्कैन करते हैं और पेमेंट करते हैं, तो वहां पे क्या होता है, एक इमेज रिकॉग्नाइज होती है ना.
तो वो जब स्कैन कर लेता है तो वो उसमें कोडिंग है, वो पर्टिकुलर कोडिंग जो है वो उस यूजर की रहती है। ठीक है। जब वो पर्टिकुलर यूजर की जो इंस्ट्रक्शन है वो उस ऐप के थ्रू आप पे करते हैं, ठीक है, तो वो यूजर आइडेंटिफाई हो जाता है एंड यू कैन पे द अमाउंट टू दैट पर्सन। Clear? So this is one kind of example that the devices can recognize the images. ठीक है, बहुत सिंपल सा एग्जांपल मैंने आपको दिया है कि फोन पे, भीम और पेटीएम, आपने देखा होगा अभी बहुत इस क्वारंटाइन पीरियड में कि अपने शॉप्स के बहुत सारे शॉपकीपर्स ने एक पेज लगा के रखा है। ठीक है, एसबीआई पे ये पेज अपने शॉप के बाहर उन्होंने लगा के रखा है दैट यू कैन स्कैन दैट पेज एंड यू कैन पे योर अमाउंट। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एआई वेयर यू कैन स्कैन and the machine can recognize the coding behind that. Okay. Second, biometric symbols, face recognition, voice recognition. ठीक है, they also come under the category of artificial intelligence. Now see, अभी जो हमने डिस्कस करा है, अब उसके आगे हम बढ़ते हैं एंड the topic is common task and expert task. So all of you read it. Common task and expert task. Human beings and many animals routinely perform this task. The human beings can identify living and non-living beings. Okay? They identify the language, signs, symbols, non-verbal language, and they navigate everywhere. Okay? They can navigate and they can identify the obstacles. Clear? Now, expert task. Only human beings with special skills can do this task. Because they checker, mathematical modeling or problem solving. Now, आप में से every student knows कि अगर आप अपने रिलेटिव्स के घर जाते हैं, किसी दूसरी सिटीज में जाते हैं और वहां जाकर आपको उसका रूटीन, उसका पता होता है कि आप कैसे, किस आपके रिलेटिव्स हैं वो कहाँ रहते हैं। ठीक है, तो आपको अपने घर कैसे ध्यान रहता है तो बताएगा ऑप्शन है। मुदित जैन, आप अपना माइक अनम्यूट करो। मुदित, यस, मुदित के बाद क्या आप, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सर आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। हाँ, मेरा क्वेश्चन कि अगर आप अपने रिलेटिव के घर जाते हैं किसी दूसरी सिटी में तो आपको उनका घर कैसे याद रहता है? सर उसकी सराउंडिंग को देखकर। हाँ बताओ। सर वहाँ की चीजों को देखकर। और सर वहाँ की अच्छा, तो लैंग्वेज। 7th क्लास में, ओके, तो पूजा आप ये बताओ, 7th क्लास में आपको एक्सकर्शन के लिए कहाँ ले गए थे? सर ग्वालियर। हाँ, तो अगर जैसे मुझे वो रूट पता नहीं है जिस रूट से आप गए थे, तो अगर पूजा आप मुझे ले जाएंगे वहां पर तो आप मुझे बता सकते हैं कि आप लोग कहाँ कहाँ गए थे?
Jaivilas Palace and Red मतलब Fort. Yes. आपको जो भी, हाँ, प्लेसेस ध्यान में होगी ना आप, है ना? अगर जैसे कि मैं कभी नहीं गया हूँ तो आप मुझे बता सकते हैं ना कि आप हम ये प्लेसेस गए थे। Yes, sir. हाँ, तो ये आपका ये इंटेलिजेंस है कि यू नो वेन एवर यू वेंट टू समवेयर, ठीक है, तो आपको पता लग जाता है कि हम लोग कितनी कितनी प्लेसेस पे गए थे, ठीक है। तो ये काइंड ऑफ इंटेलिजेंस, तो ये जो कॉमन टास्क ये ह्यूमन बींग्स की कैटेगरी में आते हैं। क्या ये क्या इस तरह का टास्क कोई मशीन कर सकती है? इट इज डिफिकल्ट फॉर मशीन, तो मशीन आपको लिख कर, ठीक है, आपके साइड पर आपको गाइड, बट देर इज एक बहुत सिंपल सा एक एग्जांपल है इसमें, और वो है गूगल मैप्स, ठीक है। तो गूगल मैप्स में क्या हो रहा है, गूगल मैप्स आपको क्या करता है, वो आप जीपीएस अपना ऑन करते हैं अपने मोबाइल का, डिवाइस का, और वो आपको आप अपना जो डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं। दिस इज अ काइंड ऑफ एग्जांपल ऑफ एआई, ठीक है। तो अक्षर, अभी जो मैंने किया ऑफ दिस एग्जांपल, नैतिक, नैतिक बताइए, अभी जो मैंने एग्जांपल दिया वो एग्जांपल किसका दिया था? Sir, common task का. यस, गूगल मैप्स का मैंने एग्जांपल दिया था, ठीक है। गूगल मैप का एग्जांपल दिया है कि द गूगल मैप इज एन एग्जांपल ऑफ सम काइंड ऑफ इंटेलिजेंस, एक इंटेलिजेंस डिवाइस है, जो क्या करता है, आप उसमें डेस्टिनेशन अपना प्रोवाइड करते हैं, और वो डेस्टिनेशन आप टाइप करने के बाद और जीपीएस अपना डिवाइस को ऑन करने के बाद वो डिवाइस आपको वो पर्टिकुलर प्लेस पर ले जाता है, ठीक है। आप गूगल मैप की हेल्प ले सकते हैं। नाउ वी कम ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। अभी हमने देखा कि आपके सामने जो स्क्रीन है उसमें कॉमन टास्क दिए गए हैं और इधर एक्सपर्ट टास्क दिए गए हैं, ठीक है। वो एक्सपर्ट टास्क जो मशीन कर सकती है, और ह्यूमंस कौन से इजी टास्क कर सकते हैं। अब कंप्यूटर्स कौन से इजी टास्क कर सकते हैं और कौन से एक्सपर्ट टास्क कंप्यूटर कैन परफॉर्म, ठीक है। सो नाउ हियर सी, ऑल ऑफ यू रीड इट। कंप्यूटर्स के लिए हार्ड टास्क कौन सा है और कंप्यूटर्स के लिए इजी टास्क कौन सा है, यहाँ पर। अच्छा, कोई रीड करेगा? कौन रीड करेगा अपने से? पार्थ, आप रीड करके बताओ। पार्थ, यस सर। यस, हाँ, अनम्यूट करो और कंप्यूटर का हार्ड टास्क एक पैराग्राफ रीड करके बताइए। Computers find it hard to perform tasks that are considered routine from for human beings. Human beings can process and interpret complex sensory information, for example, recognizing objects, navigation, etc. ओके, करेक्ट। चलिए, नाउ अक्षत शर्मा, आप इजी टास्क पढ़ के बताइए कंप्यूटर का। अक्षत, अनम्यूट करो। यस अक्षत, अनम्यूट करो। ठीक है, कौन पढ़ के बताएगा? फिर देवांग, रीड करके बताओ। देवांग, अनम्यूट करो। यस सर। यस, हाँ, हाँ, रीड इट। इजी टास्क, कंप्यूटर का इजी टास्क रीड करके बताओ। Computer are already able to perform some tasks quite easily. Examples: medical
diagnosing. In certain cases, they can perform better than human being. Second point, uh, uh, designing mathematical models, solving mathematical problems. Yes. And last point is playing games like chess and checkers. Good. ठीक है. Now see, बहुत अच्छा आपने रेस्पॉन्स दिया है अभी. ठीक है. और यहाँ पर आपको ये भी समझ में आ रहा है कि कंप्यूटर के लिए हार्ड टास्क क्या है और कंप्यूटर्स के लिए इजी टास्क क्या है. ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है. नोटेड दिस पॉइंट्स, है ना, लिखने की जरूरत नहीं है. ये आपको बार बार यूज होगा कि कंप्यूटर्स के लिए इजी टास्क क्या है. कंप्यूटर्स के लिए इजी टास्क है कि वो मेडिकल डायग्नोसिस में उसका यूज होता है, मैथमेटिकल मॉडल्स में उसका यूज होता है, और मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में यूज होता है. चेस गेम, इस तरह के जो गेम्स होते हैं उसमें कंप्यूटर्स का यूज होता है. ठीक है, ये कंप्यूटर्स के लिए इजी टास्क है. लेकिन कंप्यूटर्स के लिए ये डिफिकल्ट टास्क क्या है? ऑब्जेक्ट को रिकॉग्नाइज करना, नेविगेशन करना. हमने एक गेम खेला था, आप सबको ध्यान हो, वी प्लेड अ गेम ऑन बेस्ड ऑन एआई. और उस गेम में क्या था कि आप अपने मोबाइल का कैमरा ऑन करके उस को आपको उस ऑब्जेक्ट के पास ले जाना पड़ता है. आप उस ऑब्जेक्ट के पास ले जाते हैं, उसको स्कैन कर. इमोजीज के बन यस, हाँ हाँ, करेक्ट. इमोजी स्कैवेंजर आपने गेम खेला था. और वो जो एक दैट इज रिलेटेड टू एआई, जिसमें आप एक पर्टिकुलर डिवाइस को स्कैन कर लेते हैं और स्कैन करने से वो बोल देता है यस इट इज करेक्ट. ठीक है. कभी बल्ब आता है तो बल्ब के सामने आपको मोबाइल ले जाना पड़ता है, अपना कैमरा ले जाना पड़ता है. कभी शूज आता है, करना पड़ता है. ठीक है. तो वो देखो कितना अच्छा एक इमोजी स्कैवेंजर एक्टिविटी उन्होंने डिजाइन करके रखा है कि कैसे कभी जो माउस आता है तो वो उसको स्कैन कर लेता है, बोलता है यस करेक्ट, नाउ द नेक्स्ट इमोजी. ठीक है. सो ये कंप्यूटर्स के लिए थोड़ा सा हार्ड टास्क है, लेकिन इस तरह का भी हार्ड टास्क उसने एक गेम के थ्रू हमको शो करके बताया था. अच्छा, वन मोर क्वेश्चन इज देयर. आप में से कितने स्टूडेंट्स ने फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स लिख लिए हैं कॉपी में? वो अपने चैट बॉक्स में वाई लिख दें. दोज हु हैव कंप्लीटेड द क्वेश्चन आंसर्स in your copy, they write why. सार्थक ने कंप्लीट कर लिया है चैप्टर नंबर 1. सार्थक को क्वेश्चन आंसर्स मिल गए हैं. पार्थ को भी मिल गए क्वेश्चन आंसर्स. those students completed chapter number 1 question answers in their copy, they have to write why. Okay, ठीक है. So all of you try again and you have to complete the question answers of chapter number 1. MCQ is already there that we will cover in book only. ठीक है, वो तो हम बुक में ही कर देंगे, लेकिन आपको क्वेश्चन आंसर सिर्फ कॉपी में लिखना है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक कॉपी बनानी है. ठीक है. नाउ now let us classify some of the problems, and the problems are classifying different tasks as easy or difficult makes understanding AI difficult. Let us consider one of the simple tasks of picking up an object with one of our hands. Now think about the simple task was achieved. Okay, all of you read this task. Read it.
Now after reading this task, you are very comfortable in handling this job. They are very easy for you, but for the machine it is very difficult for them. मशीन के लिए बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है। मशीन के लिए डिफिकल्ट इसलिए हो जाता है क्योंकि बिकॉज दे डू नॉट हैव द इंटेलिजेंस. सो वी डू सच सिंपल टास्क विदाउट एनी कॉन्शियस एफर्ट्स. हम लोग बचपन से इस तरह के टास्क परफॉर्म करते आ रहे हैं, हमें कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना पड़ता है. बट द मशीन्स do not have the kind of intelligence, so this tasks are very difficult. The machines, and these are very complex tasks for the machine. और जो हमें डिफिकल्ट लगता है वो मशीन के लिए इजी हो जाता है, जैसे कि चेस प्ले करना विद द मशीन, ठीक है। टिकटॉक प्ले करना मशीन पर, वो मशीन के लिए इजी है लेकिन हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाता है. तो जो हमको लगता है वो मशीन के लिए डिफिकल्ट है और जो जाता है. अब आते हैं, अभी तो ये दैट वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ AI, एंड नाउ वी कम ऑन टू द मीनिंग ऑफ AI. So all of you read the first paragraph and then we will discuss the definition of artificial intelligence. So all of you read first two paragraphs. Then we will discuss the definition of AI. Okay, now call any student Naitik unmute करो अपना mic and read the definition. नंदनी आप अपना माइक अनम्यूट करो. नंदनी को करना है. Yes, sir. हाँ, yes, नंदनी. Artificial intelligence. Yes, read the. Artificial intelligence is the ability of the machines or computer programs to carry out tasks that requires human beings to use their intelligence. Yes, ठीक है. This is AI is a ability of machine जो ह्यूमन बींग्स के इंटेलिजेंस का यूज करते हुए दे कैन परफॉर्म सम टास्क. ठीक है, ये डेफिनेशन किसको समझ में नहीं आई है वो चैट बॉक्स में n लिख दो. टाइप n इन द चैट बॉक्स अगर ये डेफिनेशन आपको समझ में नहीं आई है तो. आई विल एक्सप्लेन वंस अगेन, क्योंकि ये डेफिनेशन आपको समझ में आ गई तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे. इफ यू डोंट अंडरस्टैंड दिस डेफिनेशन ऑफ AI, then type n in the chat box. Okay, Sarthak. Sarthak, once again, listen. AI is the ability. Okay, AI is the ability. और ये एबिलिटी किस तरह की है? जैसे हमारे पास इंटेलिजेंस है. ओके, वी आर हैविंग द इंटेलिजेंस टू रिकॉग्नाइज ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, थिंग्स. हमारे पास ये इंटेलिजेंस है, हम अपने आसपास रिलेटिव्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हम ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ये हमारे पास इंटेलिजेंस है.
लेकिन जब इस तरह की इंटेलिजेंसी मशीन में आ जाएगी तो उसको हम बोलते हैं दैट इज द एबिलिटी ऑफ मशीन। जब इस तरह की इंटेलिजेंसी मशीन में आ जाएगी दैट इज नोन एज द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वो मशीन कहलाएंगी, दे आर ए। ठीक है, सिंपल सी बात है। ह्यूमन ब्रेन में इंटेलिजेंस है, अगर वैसे ही मशीन में भी इंटेलिजेंस आ जाएगा, दोज मशीन्स आर कॉल्ड एज एआई मशीन। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक इज टू व्हाट आर द बिहेवियर्स रिलेटेड विद एआई। ये हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे और ये पीडीएफ मैंने ऑलरेडी आपके ग्रुप में शेयर करा है। आप लोग ये पीडीएफ रीड करेंगे। अभी हमने आज जहाँ तक डिस्कस करा है वहाँ तक रीड करके रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में यू हैव टू रेज क्वेश्चंस। ठीक है, अभी जैसे कुछ स्टूडेंट्स ने बता दिया कि उनको ये डेफिनेशन प्रॉपरली समझ में नहीं आया। ठीक है, सो दे हैव टू रीड इट अगेन। मैंने भी अभी एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट क्लास में वो फिर से इसको, अगर आपको समझ में नहीं आता है सो यू हैव टू रेज द क्वेश्चंस एट दैट टाइम। ठीक है, यहाँ तक आप सब रीड करके रखेंगे एंड देन वी विल गो हेड विद द नेक्स्ट टॉपिक। ओके, सायराम टू ऑल। Sairam, Sairam sir. Sairam sir. सायराम टू ऑल। Sairam sir. सायराम टू ऑल।